Hey everyone, this is Rohit Dalia with the first video lecture for class 11th Arts. The students who have opted for Arts stream, today we'll be starting off with the first chapter of Indian Constitution at Work, which is Constitution, Why and How. In the whole chapter, we'll be mainly studying about how the Constitution was made and what was the requirement to have a Constitution. Not only about India, but whenever we talk about constitution in any of the democracies or any other country, why do we need it? We have seen ample amount of information regarding constitution in the prior classes, but this would be a bit in depth. So let's start off with the first topic, which is obviously what is constitution. This is not exactly given in the textbook for 11th arts, but it's very important to start off with the meaning of what we are going to study in the whole chapter. पहले मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशंस वी हैव सीन, वी हैव read about constitution since years. Probably we have been studying it from class 6th onwards, and so the definition is obviously not going to change, but it's only going to complicate a bit with the use of better words. But just to start off with it, we'll start with some simple definition. So in simple words, if I need to put the definition of constitution, it is a book of law. Now this is the most common definition that we have heard, anyone knows about it, which is it is a book of law. मतलब एक सिंपली एक बुक है जिसमें इंडिया में या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस बताता है. मतलब एक कंट्री में कौन से लॉज है वो जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बुक टू रेफर. इस बुक का एक बिगनिंग भी होता है, जैसे हर बुक का एक इंडेक्स होता है, उसको बोला जाता है प्रीएम्बल. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव रेड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली. So, getting back to the topic, in simple words, if I need to define constitution, it is nothing else but constitution is a book of law, जिसमें क्या होता है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. पर ये बेसिक रूल्स कैसे होते हैं? फंडामेंटल होता है. फंडामेंटल का मतलब क्या? जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल है. मतलब दीज लॉज डू नॉट गो अगेंस्ट एनी वन. दीज आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, so it is believed and it is obviously made by the people, not directly but by the representatives elected by the people. हमने कुछ लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई आप हमारे बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज टू डू सो. सो एक तरीके से देखा जाए तो मैंने कुछ लोगों को पावर दिया कि मेरे बिहाफ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. तो इट इज़ नॉट wrong to say that people themselves made the constitution of India. But in general, constitution, repeating the words again, is a book of law with basic rules accepted by the society, that is everyone. अब यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन हम किससे रिलेट करते हैं? वी रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन विथ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज. जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. वो रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में हो सकता है, बट उसका एग्जिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें? वॉट आर वी गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं वो एनफोर्स किया क्यों गया. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों. ऐसे तो कौन से बेनिफिट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमें नहीं मिलेंगे. किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है वो जानना हो तो उसका एब्सेंस होगा तो क्या होगा वो समझना ज़रूरी है. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है वो समझना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता. अगर वो हम समझ ले तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. We'll go through this topic through various questions that we'll ask our own selves, and also we'll try to answer it by our own selves. We all might have different answers, but definitely we'll have answers, which is important. And finally we'll see कि इसका actual solution क्या हो सकता है. Constitution ना हो तो बहुत सारे questions arise होते हैं. उस questions का solutions कैसे मिल सकते हैं
उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। किस तरीके से? लेट अस फाइंड आउट। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आपका हेड पॉइंट है, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। वो लोगों को कोऑर्डिनेट करने में, मतलब कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है और एक अश्योरेंस देता है। अश्योरेंस का हिंदी वर्ड होता है दिलासा देता है, लोगों को एक बिलीव देता है दैट येस थिंग्स आर पॉसिबल एंड थिंग्स आर डन प्रॉपरली फॉर एवरीवन। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है हर एक इंडिविजुअल को इन द कंट्री। इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। जैसे when we talk about country like India or any society in general, we have so many religion, we have so many professions, we have so many other differences prevailing in the society other than religion and profession obviously. Like we have differences of rich and poor, बहुत सारे लोग पुअर है, बहुत सारे रिच भी और साथ में रहते हैं। Similarly, we have differences in terms of age. There are young people, there are old people, there are children. So, the question is, एक सोसाइटी में इतने डिफरेंस के साथ हाउ इज़ इट पॉसिबल टू कोऑर्डिनेट? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन। पर कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी कंट्री में हो, सोसाइटी तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है, एज वी कैन सी। अलग रिलीजन, अलग प्रोफेशंस, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल कल्चरल डिफरेंसेस, ओपिनियन के डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस है, जेंडर अलग है। तो इतने सारे डिफरेंसेस का आउटकम क्या आता है सोसाइटी में? अगर एक साथ इतने डिफरेंसेस है और इसका आउटकम मुझे एक वर्ड में समझना है तो इट इज़ नथिंग एल्स बट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट का मतलब डिफरेंसेस, डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी तरीके से अग्रीएबल पॉइंट पे ना आना। अलग अलग रिलीजन, अलग प्रोफेशन, अलग कल्चर, ट्रेडिशंस, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्टेटस, एज, इसकी वजह से एक ही कॉमन आउटकम आता है विच इज़ डिस्प्यूट। और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं डिस्प्यूट्स को कम करने की ट्राई करती है और काफ़ी हद तक करती भी है। विल सी हाउ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाइवर्सिटी की वजह से हमें पता चलते हैं। अब लास्ट स्लाइड पे हमने जो देखा दैट इज़ ऑल दीज डिफरेंसेस, इसको अगर मुझे प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने हैं इन डिफरेंसेस के लिए तो वो होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफरेंसेस। इतने सारे डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है सोसाइटी में? वी हैव मेनी क्वेश्चंस विच अराइज बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी। क्वेश्चंस लाइक as a student you all are aware that you obviously are going to school, but there is a question that इतनी डाइवर्सिटी है तो इज़ इट पॉसिबल टू मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, और शुड वी जस्ट लीव इट टू द पेरेंट्स टू डिसाइड? कि भाई पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उनके चाइल्ड जो भी है उनके चिल्ड्रन वो स्कूल जाएंगे कि नहीं, या हमें ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ेगा? सिमिलर क्वेश्चंस कि भाई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे फॉलोअर्स मेंबर्स होंगे, क्या उस ग्रुप को कोई राइट देना चाहिए कि वो अलाउ है कि वो किसी भी अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न? विल नॉट गो इनटू द रीज़न कि क्यों डिस्क्रिमिनेट करे, पर क्या ये अलाउड होना चाहिए कि एक ग्रुप में किसी मेंबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो? और जो गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है क्या वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा होना चाहिए या फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेट्स से पब्लिक पार्क्स इंस्टेड? सो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक ग्रुप के अंदर? बच्चों को स्कूल कंपलसरी भेजना चाहिए या पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए? ये तो बहुत बेसिक्स है, 3 क्वेश्चंस है जो हम अभी देख रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच क्वेश्चंस जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं just because of diversity. Diversity gives way to so many different and various questions which are left unanswered if we don't have a constitution with us. So questions तो हमने देख लिए, इतने सारे questions है, problematic questions है, better रहेगा बोलना। तो इन सारे problematic questions का solution क्या और कैसे?
व्हाट कैन बी डन? इनका एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन पे पहुंचने से पहले कुछ फैक्ट्स एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर द पीपल इन द सोसाइटी. पहला फैक्ट एक्सेप्ट करना तो ये ज़रूरी है दैट ग्रेट डाइवर्सिटी देर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी. ये पहले तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. लेकिन एक्सेप्टिंग दैट, along with that, it is also important to understand that people should also live together as one. कि डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, लेकिन लोगों को साथ में ही रहना है, यूनिटी के साथ यूनाइटेड रहना है. सोसाइटी का नेचर ऐसा है जहाँ पे इतने डिफरेंस होने के बाद भी एक चीज़ नहीं चेंज हो सकती है कभी भी, विच इज़ दैट पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल नीड द कोऑपरेशन ऑफ अदर पीपल. We human race are dependent on each other to extreme ends. There is no individual in this world who is not dependent on any other individual in any sense. इस कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं एक एग्जांपल लेके. जैसे इफ आई ask you what is the most important thing for survival of human beings, so the things which comes to our mind is food and water or air to breathe, definitely. So अगर मैं food की बात करूँ, just to take an hypothetical example which relates to actually to all of our lives. If we talk about rich people, they do have money, but can they feed upon it? Can they eat money? Obviously not. They can use money definitely to buy good things to eat, but they cannot eat money itself. So rich होने का फ़ायदा क्या? इतने पैसे होने का फ़ायदा क्या अगर आपके पास खाना नहीं है? Obviously you are not going to grow anything by your own because you are rich, you have money. So वो जो खाना एक रिच पर्सन को भी मिलता है वो कहाँ से आता है? वो आता है फ्रॉम द पुअरेस्ट फार्मर. इस एग्जाम्पल से समझ में क्या आता है? पहला, द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड. डाइवर्सिटी का हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया इसमें? विच इज़ रिच एंड पुअर. सेकेंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज इज, irrespective of how poor or how rich you are, you will have to depend on each other for survival, for sure. जैसे obviously as I said, the rich person in the image cannot eat the money, but can use the money in agricultural sector and make sure कि जो farmer जिसके पास पैसे नहीं है, poor है, वो better production कर पाए, अच्छा production कर पाए, ज़्यादा production कर पाए. तो वो रिच पर्सन अपने पैसे को यहाँ पे यूज़ कर सकता है, और अगर वो करे तो फार्मर बेटर प्रोड्यूस करके वही प्रोडक्शन वापस सारे लोगों के पास जाएगा, इंक्लूडिंग द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू. सो इवन द रिचेस्ट क्लास इज डिपेंडेंट ऑन द पुअरेस्ट फार्मर. सो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे डाइवर्सिटी हो तो भी साथ में कोऑर्डिनेट करके रहना बहुत ज़रूरी है. पर ये हो कैसे पाएगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ टू मेक श्योर दैट डिफरेंट ग्रुप्स लिव टुगेदर पीसफुली? इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, हाउ टू मेक श्योर कि रिच एंड पुअर लिव पीसफुली? हाउ टू मेक श्योर डिफरेंट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट प्रोफेशंस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव टुगेदर पीसफुली? ये पॉसिबल कैसे है? This is possible by making sure that there are some basic rules in the society. This is the key word, basic rules. वापस से थोड़ा याद करें तो हमने फर्स्ट मीनिंग देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये सेम वर्ड हमने देखा था. इट इज़ अ बुक ऑफ लॉ विथ सम बेसिक रूल्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. वी आर गेटिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन कि भाई हमने प्रॉब्लम्स देख ली, क्वेश्चंस देख लिए, डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, वो भी देख लिया. लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे कितने भी अलग हो, कितने भी डाइवर्स हो, वो भी हमने देख लिया. पर इतनी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी हाउ टू मेक श्योर दैट दे लिव पीसफुली टुगेदर इन द सेम सोसाइटी? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाए जो हर कोई फॉलो करे, रिच भी, पुअर भी, ओल्ड भी, यंग भी,
अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग भी हैं. Every individual in the society will follow these basic rules. Just think of what happens when there are no basic rules. मान लेते हैं आज तो हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बेसिक रूल्स है जो हर कोई फॉलो करता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने वो बेसिक रूल्स हमें दिए हैं. बट लेट्स फॉर अ मिनट फॉरगेट दैट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लेट्स जस्ट फॉरगेट फॉर अ मिनट दैट वी हैव एनी बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी. तो क्या लगता है किस तरीके की एक सोसाइटी क्रिएट होगी? द आंसर इज पीपल विल लिव विथ इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी मतलब दे विल हैव अ फियर, काइंड ऑफ अ फियर. किस चीज़ का फियर? डर किस चीज़ का और क्यों? बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि दूसरे ग्रुप्स क्या करने वाले हैं. दे आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट अदर ग्रुप्स आर गोइंग टू डू, बिकॉज देर आर नो बेसिक रूल्स, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम बेसिक रूल्स जो सबको पता हो और एनफोर्सेबल हो. रिमेंबर दीज टू कीवर्ड्स. सिर्फ बेसिक रूल्स होना ज़रूरी नहीं है, बेसिक रूल्स सबको पता होना भी ज़रूरी है, तभी तो वो फॉलो करेंगे. मुझे रूल्स पता होंगे तो मैं फॉलो करूँगा, बट सिर्फ क्या मुझे रूल्स पता होंगे तो मैं फॉलो कर लूँगा? या मुझे ये पता होना भी ज़रूरी है कि अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें कोई पनिशमेंट भी है? Is it compulsory for everyone to follow the rules? If yes, then I'll follow the rules. But अगर compulsory नहीं है तो मैं follow नहीं करूँगा. So rules सबको पता होना भी ज़रूरी है, must be known to all, और enforceable होना भी ज़रूरी है. मतलब compulsory should also be enforceable. Because if people are not assured about it, अगर लोगों को गारंटी नहीं दी जा रही है about the basic rules being known to all and enforceable by law, तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि मैं फॉलो करूं. तो कोई फॉलो रूल्स करेगा ही नहीं. एंड देयर बाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव दीज रूल्स एनफोर्सेबल. एंड सो इफ़ वी आर सपोज टू कंक्लूड इट, यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि सर समझ में तो सब आ गया, बट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें? इफ़ अ क्वेश्चन कम्स अप इन द पेपर दैट एक्सप्लेन वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमने सिर्फ डिस्कस किया है. तो उसको अगर कंक्लूड करना है एक पॉइंट में, तो उसका कंक्लूजन सिंपल है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स. बट ये बेसिक रूल्स कैसे होने चाहिए जो सब लोग फॉलो करें? और क्यों बनाए जाते हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए. एक सोसाइटी में रहने वाले डाइवर्स मेंबर्स भी ये रूल्स फॉलो कर पाएँ, ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होने ज़रूरी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन क्या है? अगेन इट इज़ टू गिव अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. Thereby we hence prove that we need constitution for one reason, which is to have some basic rules to maintain coordination and to ensure that disputes that arise out of the diversity in the society are reduced to the minimum level by ensuring a minimum coordination amongst members of the society. And this is ensured by creating some basic rules which are enforceable and known to all. I hope you have understood this first point. This is it with the first lecture of this chapter. We'll continue with the next topics in the videos coming up later. Thank you so much.